In the name of Allah, the Rahman, the Rahim, dear students, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Topic for today's lecture discussion is summary writing. Dear students, we have already taken one class on the summary writing skills. So it's the continuation of the same class. In today's class, we will be learning that how to give appropriate definition for a summary or appropriate title for a summary. We will be trying to know the characteristics of a good summary, learn the techniques in summary writing, and we will be also learning the steps in summary writing we are taking that helps us in writing a good summary of a passage. So now what is a summary? A summary is a shortened passage or a shortened form of a passage which retains the essential information of the original. Like for example, we have original text or original 100 lines poem, we can say that, or a chapter of a book. So in summary writing, when we are writing a summary of the same passage, जब हम उस पैसेज की समरी लिखते हैं या उस नज़म या गज़ल की समरी लिखते हैं या उस चैप्टर की बुक की चैप्टर की समरी लिखते हैं, सो वी आर मेकिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट पैसेज ऑफ दैट चैप्टर ऑफ अ बुक. So summary is a shortened form, a brief form of a passage. When we reduce a lengthy, a very long passage in shorter form, this is called the summary. But remember, dear students, there must be the essential information which are given by the writer in the original text. जो information, जो मतलब necessary information हो, जो writer ने passage में दी गई हो, वो हम नहीं छोड़ेंगे. We can't avoid those information which are essential. Essential information must be there, though it will be the shorter form of original passage. It is a fairly brief restatement. Yes, हम उसको restatement करते हैं, दोबारा से बयान करते हैं in our own words. It's very important, dear students. हम राइटर के वर्ड्स को यूज नहीं करते. वी आर एक्सप्रेसिंग द राइटर आइडियाज इन आवर ओन वर्ड्स. हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं, ठीक है, ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ पैसेज. यस, जो वो कंटेंट्स पैसेज में उसने डाले हैं, जो मतलब इंफॉर्मेशन उन्होंने वहाँ पर इंक्लूड किए हैं, वी आर ट्राइंग इन समरी राइटिंग टू री-write, to re-reproduce the same but in our own words. Like we simply, dear students, report back what the writer has said, what the writer has mentioned, what the writer has written in the original text. We do not evaluating, we are not making critique. हम उस पर तनकीद नहीं करते, हम उसको ये नहीं कहते हैं कि these things are lacking, this is the deficiency in this passage, इस पैसेज में ये गलती है, ये कमी है, ये चीज़ें मिसिंग है. नो, वी आर नॉट, वी हैव नो कंसर्न विद दीज थिंग्स while writing a summary of a passage. We are generally just taking the main idea, the main theme, the essential information from the original text, and then we are writing in our own words. So it becomes a summary of the passage, dear students. This is the only difference. Now, what will be the characteristics or upon what elements we can say that is a good summary, and this is a very valuable summary. For example, the first one, it can be understood without reference to the original. अगर आप summary लिखते हैं, ठीक है, उसको अगर कोई पढ़े तो उसको ये मुश्किल पेश ना हो कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट को फिर से रेफर हो जाए, मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग ना बन जाए ना, अंडरस्टैंडिंग में उसको मुश्किल आए. नहीं, समरी ऐसे होनी चाहिए कि अगर कोई समरी पढ़े उसको पूरा समझ आ जाए जो ओरिजिनल टेक्स्ट है. जिस तरह के मैंने एक आप लोगों को पोएम दिया है, शॉर्ट स्टोरी दी है, वो है शॉर्ट स्टोरी द हैप्पी प्रिंस,
ठीक है, बाय ऑस्कर वाइल्ड। द हैप्पी प्रिंस एक शॉर्ट स्टोरी है। अब अगर आप लोग उसमें समरी तैयार करते हैं, समरी लिखते हैं, जो कोई आपकी समरी को पढ़ेगा तो वो क्या होगा, वो उसको जरूरत नहीं होगी कि वो रेफर हो जाए द हैप्पी प्रिंस ओरिजिनल टेक्स्ट को। नो, वी वांट टू फैसिलिटेट द रीडर, वी वांट टू गिव देम लाइक मटेरियल टू मेक him or her able to understand the original on the basis of summary, on the basis of summary, yes. So ये तब हम कर सकते हैं जब हम essential information को summary में include कर सके। dear students, is a faithful reproduction of, yes, or contains only the ideas or information of the original, yes. हम मतलब justify करेंगे, हम उसके साथ justice करेंगे, ठीक है। We will be having no concern with the assessment, the critique, the judgment, the criticism. We are not criticizing the writer ideas. We are just writing, rewriting in our own words his or her ideas, okay, while writing a summary of a passage. Is brief without any unnecessary detail, is a readable unified whole. Yes, dear students, it must be brief. This is very important, like shortened form or the shorter form of a passage. So इसका मतलब ये है कि हम unnecessary detail, गैर ज़रूरी detail, जो peripheral, like we have central ideas and we have peripheral ideas, supporting details in a text. फॉर एग्जाम्पल राइटर ने एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन्होंने बहुत सारे मिसालें दी हैं, उन्होंने मतलब ज़्यादा तफसील से बात की है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन डाले हैं रीडर्स के लिए, उसको हम छोड़ सकते हैं, या कुछ रेफरेंसेस है उसमें वो भी हम छोड़ सकते हैं। बट रिमेंबर, वी आर नॉट लाइक अवॉइडिंग द एसेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स इन समरी राइटिंग? फर्स्टली डियर स्टूडेंट, पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग, जिस तरह के हम पोइट्री के एक स्टांजा को लेते हैं उसको पैराफ्रेज करते हैं। पैराफ्रेज का मतलब ये है कि एक्सप्रेस इन आवर ओन वर्ड्स, टू एक्सप्रेस समथिंग इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। अब एक राइटर है, उन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं, आप जब उसको अपने अल्फाज में बयान करते हैं, सो इट मीन्स दैट यू आर पैराफ्रेजिंग, ओके, आर रीफ्रेजिंग। फिर से दोबारा से आप स्टेट करते हैं, बताते हैं। सो पैराफ्रेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू पैराफ्रेज मीन्स टू कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली एक्सप्रेस अदर पीपल्स आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स, यस। सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक, to look at the text, to look at the original text, to read the original text, and to paraphrase in your own words. Okay, the ideas of the writer in a text must be paraphrased in your own words. So now you are taking the start, the beginning of the summary writing. Now, what is the importance of paraphrasing? Why we are doing paraphrasing? It helps us to understand the original better. Yes. जब हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं ना, so it means that it helps us in understanding the original better. In a better way, we will be able to understand the original. Okay? जब हम paraphrase करते हैं, या for example, your readers, people who will be reading your summary, okay, they will be able to understand the original in a better way. It helps us to grasp the central idea in the main points. Yes, for memorization purpose it also helps us. जब हम memorize करते हैं, ठीक है, किसी चीज को, so then we are paraphrasing in our own words. हम अपने लिए लिखते हैं, ठीक है, अपने अल्फाज में लिखते हैं, फिर हम उसको easily memorize कर सकते हैं. It helps us to write the summaries that are brief to the point in our own words. So this is the purpose and this is the importance of paraphrasing. एक तो paraphrasing के साथ हम betterly उसको क्या कर सकते हैं, easily उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और हम सेंट्रल आइडियाज़ को मेमोराइज कर सकते हैं, मेन पॉइंट्स को हम ले सकते हैं, ठीक है। जब हम अपने अल्फाज में लिखते हैं तो वो जो काम राइटर ने किया है वो हमारा हो जाता है, ठीक है, हम उसको बयान कर सकते हैं। फिर नाउ स्टेप्स फॉर पैराफ्रेजिंग।
Dear students, firstly, read the original text carefully and comprehend its meaning wholly and correctly. Yes. So read the original text. read the original passage और पोइम, जो भी चीज़ है राइटर ने दिया है उसको आप रीड करें, उसको आप पढ़ें, केयरफुली पढ़ें, बहुत मुहतात तरीके से पढ़ें, ठीक है। और कोशिश करें कि कंप्रहेंशन बन जाए, उसको अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। मीनिंग्स के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, होल को अंडरस्टैंड करने की। ऐसा ना हो कि आप जस्ट पार्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, या कुछ लाइंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, या कुछ पैराग्राफ्स को लेते हैं। नो, इट्स लाइक अ रॉन्ग method, a wrong track you are taking. No, try to understand the whole text. Okay, one whole को understand करने की कोशिश करें. Consider the original article as a whole. Yes, not a part, not in isolated sentences. Just एक सेंटेंस एक पैराग्राफ से, या 2-3 सेंटेंसेस एक पैराग्राफ से, दूसरे पैराग्राफ से नहीं, आप सारा पढ़े एक बार, उसको फिर आप अपने अल्फाज में लिख सकेंगे, ठीक है। Now another टेक्निक इन समरी राइटिंग, ग्रेस द मेन आइडिया। यस, जब आप पढ़ते हैं while reading you should focus on the main ideas. जब आप पढ़ते हैं ना, so try to understand, try to grasp, try to take the main ideas from the text. Now how we can condense, how this condensation comes. Okay, what are the ways? Condensation means this briefness, this shorter form comes. How? Use synonyms, dear students. First technique, use synonyms. राइटर ने जो वर्ड्स यूज किए हैं आप synonyms यूज करें, ठीक है। अल्फाज वो मुतरादिफ अल्फाज यूज करें। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल वर्ड यूज किया है कि ब्रीफ का शॉर्ट वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह उन्होंने अवर वर्ड्स लाइक फ्रीडम, लिबर्टी, सिनोनिम्स को आप यूज करें। सिनोनिमस फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं। ऐसे फ्रेजेस, फॉर एग्जांपल सेंटेंस को लेते हैं, ही हैड अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश, अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं ही नीव इंग्लिश वेल, गुड कमांड है ना, he knew English well, ये हमने रिफ्रेज किया, synonymous phrase हमने यूज की। Change the structure of simple sentences. Change the structure of simple sentences. For example, my mother has an appreciation of modern art. Yes, मतलब modern art को वो appreciate कर सकती है। So इसको ये एक appropriate long sentence है, इसको short form में my mother appreciates modern art. Okay, just structure को rewrite करें, फिर से लिखे और simple structure बनाए। complex sentences, compound sentences को आप simple sentences में try to convert complex, simple, complex, compound, complex or complex compound sentences into simple sentences. सादा अल्फाज में, सादा जुमलों में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें। टर्न कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस, ये अनदर है कि सिनोनिम यूज करें, सिंपल सेंटेंसेस यूज करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही रिसीव्ड अ वेलकम दैट वाज एज कोल्ड एज आइस, सो इसको हम लिख सकते हैं कि ही रिसीव्ड एन आइसी वेलकम। देखिए कितने वर्ड्स हमने रिड्यूस किए। दैट वॉज लाइक नंबर ऑफ वर्ड्स आर रिड्यूस्ड इनटू लाइक सिंपल वर्ड्स आर very little words. He received an icy welcome. Now dear student, another technique, combine the sentences. मतलब try to combine 2-3 sentences से आप एक सेंटेंस बनाए, उसको मतलब comprehensive, brief and comprehensive ways you should try to write the summary. Hurry up, if you don't you will miss the train. Now dear students, hurry up, if you don't you will miss the train. Hurry up, or just say you will miss the train. Hurry up, you will miss the train.
फाइंड द टॉपिक सेंटेंस इन मेकिंग एन आउटलाइन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप जानते हैं कि व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस को आउटलाइन आप बनाएं कि व्हाट आर द टॉपिक सेंटेंसेस इन ईच पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंसेस में मेन आइडियाज को राइटर मतलब मेन आइडियाज को एक्सप्रेस करता है टॉपिक सेंटेंसेस में। हाउ टू राइट अ समरी, द इंपॉर्टेंस ऑफ समरी राइटिंग, नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर अ गुड समरी, प्रॉपर साइटेशन की जरूरत है। डियर स्टूडेंट्स, साइटेशन का मतलब है रेफरेंसेस। आप साइट करें, आप रेफरेंसेस दे दें। ठीक है, जब आप लिखते हैं ना, टाइटल का रेफरेंस दे दें कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट, व्हाट इज द सोर्स, जहां से मतलब न्यूज़पेपर से आपने दी है या बुक है, जो भी है उसका आप दे दे, रेफरेंस दे दे, साइट करें। डेट ऑफ पब्लिकेशन, अगर रिसर्च पेपर है उसको आप समराइज करने की कोशिश करते हैं, सो यू शुड यू शुड मेंशन द डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड द टेक्स्ट। जर्नल आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल जर्नल है, उसके भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। थीसिस स्टेटमेंट जो मेन स्टेटमेंट है, मेन आइडियाज को जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। द टॉपिक आर द जनरल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टेक्स्ट, द ऑथर्स मेजर assertion, major theme, major stance of the author, comment or position on the topic. That what is the author or what are the author comments on the topic, you should write like in thesis statement, the main idea of the text. Now dear students, comes supporting details, major supporting ideas, relationship among these ideas, like what are the relationship among the ideas that are expressed by the writer in a text, in original passage or poem. ओके, आप आइडियाज को ऑर्डर दे दें। जो सपोर्टिंग आइडियाज है, सपोर्टिंग आइडियाज हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द होल टेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, इससे हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, ताकि हम अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग बन जाए। द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग, नो पर्सनल ओपिनियंस, आइडियाज एंड इन्फ्लुएंसेस। यस, हम समरी राइटिंग में पर्सनल जो हमारी ज़ाती राय है वो नहीं डाल सकते, उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, हम अपना मतलब जो ओपिनियन है हमारा वो नहीं डाल सकते, या हम अपने अंदाजे नहीं लगा सकते। हम जाएंगे, हम मतलब बाउंड रहेंगे टू द स्टांस, टू द आइडियाज ऑफ द ऑथर्स ऑफ द टेक्स्ट। नाउ ग्रामर इन द स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग, अवॉइड डायरेक्ट कोटेशन यूज ना करें। मतलब डायरेक्ट कोटेशन का मतलब ये है कि आप जस्ट लाइक टेकिंग द ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द राइटर। नो, यूज ट्रांजिशनल डिवाइसेस बट देयरफॉर, हाउएवर, ओके, hence, thus, like transitional devices, lexical devices, cohesive devices हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, what will be the length of the summary? 1/4 or 1/4 to 1/3 of the original। ऐसे ना हो कि आप ओरिजिनल से भी बढ़ाएं, उसको ज्यादा एक्सपेंड करें। नो, यू शुड कीप इन माइंड दैट आई एम राइटिंग द समरी, ओके, लाइक यूज as much words as possible, as lesser words as possible। ठीक है, express your ideas and in like minimum words, okay, in very brief words. Don't use extra or very like high frequency words. Don't use direct quotations, difficult words, डिफिकल्ट सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, उसको आप न लें। आप जस्ट सिंपली राइट द मेन आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्टेप्स इन राइटिंग अ समरी, रीड द आर्टिकल टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल एंड फाइंड द ओरिजिनल थीम। ये हम बार बार पढ़ते हैं, रीडिंग बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट जब भी आपको एक पैसेज दिया जाए कि इसका आप समरी लेके, फर्स्ट आप उसको रीड करें, केयरफुल रीडिंग करें। ठीक है, रीड द आर्टिकल, डिवाइड इनटू सेक्शंस एंड लेबल ईच सेक्शन। अच्छा, फॉर एग्जांपल डिफरेंट सेक्शंस हैं, उसमें
डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं आपके ओरिजिनल टेक्स्ट में, ट्राई टू डिवाइड दिस पैराग्राफ्स इनटू सेक्शन में डिवाइड करें कि आथर ने फर्स्ट सेक्शन में ये आइडिया एक्सप्रेस की है, दूसरे सेक्शन में ये है, तीसरे में ये है, लास्ट में ये है। आप उसको लेबल करें, नेम्स दे दें, ठीक है, सेक्शंस को जब आप डिवाइड करते हैं। So then you will be able to write the summary. Formulate the thesis statement. आप thesis statement बनाएं, ठीक है। Write the first draft आप तैयार करें। जब आप रीड करते हैं, सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन में डिवाइड करते हैं, फिर आप फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करें। इन द फर्स्ट सेंटेंस आर टू द ऑथर्स नेम्स लेके, द आर्टिकल्स चैप्टर्स नेम लेके, द ऑथर्स थीसिस स्टेटमेंट लेके, ठीक है, कि उनका क्या स्टांस है, उनका मतलब राइटिंग का मकसद क्या है। देन द समरी सेंटेंसेस फॉर ईच पैराग्राफ आर सेक्शन। हर पैराग्राफ को जो आपने सेक्शन में डिवाइड किया है उसको अलग अलग आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स टू अवॉइड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि इंटेलेक्चुअल थेफ्ट। आप किसी दूसरे के आइडियाज को नहीं चुराते, आप अपना काम करते हैं। इट इज अ थेफ्ट डियर स्टूडेंट्स। जब आप एग्जैक्ट वर्ड्स किसी और की कॉपी करते हैं, ठीक है, उनको रिप्लिकेट करते हैं, दोबारा से लिखते हैं, आप दावा करते हैं कि ये मेरे वर्ड्स हैं, सो इट्स लाइक अनएथिकल इशू है, अनएथिकल है कि आप किसी और के काम पे अपना नाम लिखते हैं। इट्स लाइक अनजस्टिस विद द राइटर। उन्होंने तो ये काम किया है कि आपको कुछ दिया है, आपको मटेरियल प्रोवाइड किए हैं, सो डोंट यूज़ ओके द प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब समझ गए कि प्लेजरिज्म का मतलब है कि आप किसी और के विदाउट रेफरिंग, उनका नाम भी आप मेंशन नहीं करते, आप कहते हैं कि ये मेरा वर्क है, ठीक है। ओकेजनल सपोर्टिंग आइडियाज इफ नेसेसरी। Eliminate unnecessary words and repetitions. Sometimes writers किसी चीज़ को repeatedly बयान करता है, फिर मतलब उसको रेफरेंस देता है, रेफर होता है, सो एलिमिनेट, उसको कम करें। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को अवॉइड करें, ठीक है, रिपीटिशन को अवॉइड करें, छोड़े। एलिमिनेट पर्सनल आइडियाज इन रेफरेंसेस। यूज ट्रांजिशंस फॉर अ स्मूथ एंड लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज। यस, ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं ना, वो फ्लो ऑफ आइडियाज़ के लिए यूज़ करते हैं कि हमारी आइडियाज़ में क्या हो, फ्लुएंसी हो, राइटर को कभी मुश्किल पे रीडर को कभी मुश्किल पेश ना आए। कंक्लूड विद अ सममिंग अप सेंटेंस। जी, समरी का भी आप कंक्लूजन देंगे। फर्स्ट आप मतलब राइटर के नेम से, चैप्टर के नेम से शुरू करेंगे, किताब के नाम से लिखेंगे, फिर आखिर में आप कंक्लूजन भी देंगे, ठीक है। अच्छा, आखिर में आप फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हैं। फाइनल ड्राफ्ट को आप टेली करते हैं राइटर के आइडियाज़ के साथ कि मैंने वो इन्फॉर्मेशन डाले हैं या नहीं। थैंक्स।